Hey everyone, how are you? Welcome to the Son of David. And today in this video, we are starting another chapter from the novel The Mayor of Casterbridge that is written by Thomas Hardy. So previously we have covered 5 chapters, and in those 5 chapters we have seen about Suzanne, Elizabeth Jane, and the relative. Like in the previous video, we have seen that here Suzanne is saying that Hanchard is her relative. So now in chapter 6, we will be continuing from the same point where we have seen that how Suzanne and Elizabeth Jane is looking for the hall, like what is going on inside the dinner party, and the place, the hotel, the King's Arm, where this dinner was going on. So all the things, all the pictures were clearly seen from the steps where Elizabeth Jane was talking to some neighbors in the sense the old person who was standing there, and they got to know that this particular person is not taking liquor since long. So this was surprising for for Suzanne, and Suzanne says that okay, I don't want to meet Hanchett now. I want to leave. Suzanne is into thoughts that earlier when she was with him, the situation of the person was different, and now he has become a rich man. So there is no mean of meeting him now, and she feels like she's poor now, poor lady, and I don't think that Hanchard will be meeting. So these kind of things came out by Jen, that no, mother, don't be afraid of him. I'll try my best to meet him. So this was all we have seen in the previous chapter. Now let's see what is there in the next chapter. When he heard Hanchard's closing words, "It can't be done." He smiled impulsively, drew out his pocketbook, and wrote down a few words by the end of the light in the window. एक और चीज मैं बताना भूल गई कि पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे एक टॉपिक उठ के आता है जब सब उसके बारे में अच्छा बोल रहे होते हैं हैंचर्ड के बारे में, तो नीचे से जो छोटे वाले बिजनेसमैन होते हैं, छोटे ट्रेडर्स होते हैं, वो कहते हैं कि जो तुमने ये खराब ब्रेड खरीदी है, सॉरी खराब जो अनाज खरीदा है, जिसकी वजह से ये ब्रेड जो है मार्केट में नहीं है, यानी कि खराब ब्रेड मिल रही है, उसका क्या? तो बताता है कि जिस तरह से मेरे साथ धोखा हुआ है अनाज को लेके, वैसे ही उन बेकर्स के साथ धोखा हुआ है, उनके साथ भी वो गलत सप्लाई हो गया। फिर वो कहता है कि ऐसा कोई है जो इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकता है। तो फिर उसी पीछे की भीड़ में से एक आदमी खड़ा होता है और कहता है मैं ये करूँ। ठीक है। तो when he heard Hanchard's closing words, "It can't be done," he smiled impulsively. जब वो ये देखता है कि हैंचर्ड बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ठीक हो जाएगा, तो वो हंसता है ना? बिना सोचे समझे वो हंसने लग जाता है उस बात पे कि ये क्या कह रहा है। ठीक है। और उसने अपनी पॉकेट बुक निकाली, यानी अपनी पॉकेट में से एक डायरी निकाली, एंड रोट डाउन अ फ्यू वर्ड्स बाय द एड ऑफ द लाइट इन द विंडो। तो वो साइड में जो विंडो में से लाइट आ रही थी, वहां से उसने उसकी हेल्प से एक नोट लिखा अपनी पॉकेट बुक में, अपनी डायरी में। ठीक है। He tore out the leaf, एक पेज उसने फाड़ा, folded and directed it, and seemed about to throw it in through the open sash upon the dining table. उसने क्या किया, ये पर्सन विंडो के बाहर था, सॉरी हमने अभी तक पढ़ा नहीं है कि वो लाइक वो चीज अब आएगी जिसने ऑफर दिया कि आई कैन सॉल्व द थिंग्स। तो ही टोर आउट द लीफ, फोल्डेड, उसने एक पत्ता यानी एक पेज फाड़ा डायरी में से, और उसको विंडो से बाहर, विंडो के अंदर की तरफ फेंक दिया। कहाँ पर? उसने उसकी तरफ, सैश, ओपन सैश यानी कि विंडो का जो खुला गेट था, और उससे डाइनिंग टेबल की तरफ वो फेंकना चाहा। बट ऑन सेकंड थॉट, लेकिन फिर उसने क्या सोचा, एज्ड हिमसेल्फ थ्रू द लॉइटर्स, पर फिर उसने दोबारा जब उसने सोचा तो वो जो इधर उधर घूमने वाले लोग थे, है ना, उनके बीच से उसने टिल ही रीच द डोर ऑफ द होटल, उस होटल तक पहुंचा,
where one of the waiters who had been serving inside was now idly leaning against the doorstep. तो जो बाहर वेटर घूम रहे थे ना, उनके बीच में, और जो लोग जा रहे थे उनके बीच में से उसने रास्ता बनाया और वो होटल के मेन गेट तक पहुंच गया, जहां अंदर वेटर जो जहाँ पे वो सर्विस दे रहा था, वहां वो आलसी, मतलब अभी उसका कोई काम नहीं था, तो वो आइडली लीनिंग अगेंस्ट द डोर स्टेप, वो ऐसे ही वेटर जो है वो गेट पे लटका हुआ खड़ा था। लटका मतलब सहारा ली। ठीक है। तो वो उस वेटर को जाके कहता है कि गिव दिस टू द मेयर एट वंस, कि क्या तुम ये मेयर को दे दोगे, हैंडिंग इन हिज हेस्टी नोट। ठीक है, वो जो जल्दबाजी में उसने जो चिट्ठी लिखी थी, मेयर के लिए जो लेटर लिखा था, अपनी डायरी में से फाड़ के दिया, उसको पकड़ा दिया फोल्ड करके कि क्या तुम ये मेयर को दे दोगे। पहले उसने सोचा था कि मैं इसको यहाँ से फेंकूं और सीधा जाके कहाँ पहुंचेगा, मेयर की टेबल पे, लेकिन फिर उस वो जाता है और गेट पे खड़े हुए वेटर को बोलता है कि तुम दे दो। एलिजाबेथ जेन हैड सीन हिज मूवमेंट एंड हर्ड द वर्ड्स, तो which attracted her both by their subject and by their accent. A strange one of those part, it was quaint and northerly. अभी एलिजाबेथ जेन जो है ना, उसने इस मोमेंट को, इस हरकत को देख लिया था, है ना, एंड हर्ड द वर्ड्स, और उसने सुन भी लिया था कि उसने कहा कि ये नोट उसको दे दो। ठीक है। विच अट्रैक्टेड, जो कि उसको अट्रैक्ट किया, है ना, जो उस जगह पर ये चीजें बिल्कुल नई थी। अ स्ट्रेंज वन फॉर दोज पार्ट, ऐसी जगहों पर ऐसे किसी को नोट पकड़ा के वहां तक पहुंचाना एक अलग चीज थी। इट वॉज क्वांट एंड नॉर्दरली, ये एक तरह से डिफरेंट था, अजीब था, बिलीव करने वाला नहीं था। ठीक है। तो हैंचर्ड के पास अभी एक नोट पहुंचेगा उस पर्सन से, ठीक है, जो कि उसने वेटर को पकड़ा दिया, जो वेटर बाहर गेट पे खड़ा था। ओके। द वेटर टुक द नोट, वेटर ने क्या किया, वो नोट ले लिया उसके हाथ से, और वाइल द यंग स्ट्रेंजर कॉन्टिन्यूड, और जो यंग स्ट्रेंजर है वो बोलता है, एंड कैन यू टेल मी ऑफ अ रिस्पेक्टेबल होटल दैट्स अ लिटिल मोर मॉडरेट देन दिस। तो फिर वो पूछता है उस वेटर से ही कि क्या तुम मुझे कोई एक अच्छी होटल के बारे में बताओगे जो इससे ठीक हो, मॉडरेट इन द सेंसेस कि उसके जो कम पैसे लगते हो, है ना, कि ऐसी कोई मुझे अच्छी जगह बताओ कि जो इससे थोड़ा सस्ता हो। द वेटर ग्लैंस इनडिफरेंटली अप एंड डाउन द स्ट्रीट, तो वेटर जो है ना वो सड़क के दोनों तरफ देखता है ना, लेफ्ट और राइट। दे से द थ्री मैरिनर्स जस्ट बिलो हियर, और फिर कहता है कि थ्री मैरिनर्स जो होटल है, जो इधर पास में ही है, ठीक है, जो यहाँ नीचे ही है, इज अ वेरी गुड प्लेस, वो बहुत अच्छी जगह है। अब आपको ध्यान रखना है, एक नाम आया था किंग्स आर्म, द किंग्स आर्म, जहां पर ये चल रहा है, ठीक है, इवेंट, ये डिनर चल रहा है, वहां के लिए बोलता है, एंड बताता है कि इज वेरी गुड प्लेस, ही लैंग्विडली आंसर, वो अ, अपने लैंग्वेजली का मतलब क्या होता है, सुस्ताए हुए, ये ना, छोटी सी आवाज में कहता है कि उधर उधर नीचे ही एक होटल है, थ्री मरीनर, वहां चले जाओ, बट आई हैव नेवर स्टेड देयर माई सेल्फ। तो वो बताता है कि मैंने, अच्छी तो है लेकिन मैं, सस्ती है लेकिन मैं कभी वहां रुका नहीं, ठीक है, मैं नहीं ठहरा हूँ, लेकिन आई कैन सजेस्ट यू दैट यू कैन गो देयर। ओके। द स्कॉचमैन एज ही सीम टू बी थैंक्ड हिम, अभी ये पर्सन कौन था, स्कॉचमैन था, ठीक है, स्कॉटिश, स्कॉटलैंड का था, जो लगता था कि वो स्कॉटलैंड का था। उसने उसको थैंक यू बोला एंड स्ट्रॉल्ड ऑन इन द डायरेक्शन ऑफ थ्री मारीना, aforesaid apparently more concerned about the question of an inn than about the fate of his note, now that the momentary impulse of writing it was over। ठीक है। तो अभी वो जो उसकी बात सुनता है कि हाँ ठीक है आप उधर चले जाओ, तो वो उसको थैंक यू बोलता है और उस डायरेक्शन की तरफ, थ्री मैरिनर्स के डायरेक्शन की तरफ वो निकल पड़ता है। ठीक है। अपेरेंटली मोर कंसर्न, है ना, अबाउट द क्वेश्चन ऑफ एन इन, वो ज्यादा कंसर्न था अपने होटल की, अपने रहने की जगह को ढूंढने के लिए, रादर देन द फेट ऑफ हिज नोट, रादर देन ये कि वो उसने जो लेटर लिखा है उसका क्या होगा,
नाउ दैट द मोमेंटरी इम्पल्स ऑफ राइटिंग इज वर्क। अब जो उसने लिखा था उस मोमेंट पे, जब किसी ने बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जब मेयर ने बोला कि नहीं अभी ये कौन फिर से ठीक नहीं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, जब उसी मोमेंट पे उसने एक कागज पे लिख के पकड़ा दिया। एंड नाउ ही इज मोर कंसर्न टू फाइंड अ लॉज, टू फाइंड अ प्लेस टू लिव। एंड देन ही मूव टुवर्ड द थ्री मैरिनर्स। थ्री मैरिनर्स एक होटल है जो कि किंग्स आर्म से सस्ता है, वहां वो जाने की सोचता है। While he was disappearing slowly down the street, the waiter left the door. जब वो धीरे धीरे सड़क की तरफ जाने लगता है तो वेटर दरवाजे से चला गया। एंड एलिजाबेथ जेन saw with some interest the note brought into the dining room and handed to the mayor. और एलिजाबेथ जेन ने क्या देखा कि उस वेटर ने वो नोट जो उस आदमी ने दिया था उसको लेके वो डाइनिंग रूम में आ गई और आ गया और मेयर को पकड़ा दिया। तो उसने देखा कि वो जो नोट है जो उस आदमी ने दिया वो अब मेयर तक जा पहुंचा है, ठीक है, वेटर के थ्रू। हैंचर लुक्ड एट इट केयरलेसली। हैंचर ने इसको बड़े इजी वे में लिया, अनफोल्डेड इट विद वन हैंड एंड ग्लैंस इट थ्रू। एक हाथ से उसने खोला और देखने लगा, ठीक है, देखने लगा कि इसके अंदर क्या है, सरसरी निगाह से ग्लैंस इट थ्रू। Thereupon it was curious to note an unexpected effect. इसके बाद उसमें एक अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट देखना was curious कि उसमें क्या लिखा है, तो how he reacts. The nettled, clouded aspect which had held possession of his face since the subject of his corn dealing had been brushed changed itself into one of arrested attention. Okay. The nettled, चिड़ा हुआ, है ना, क्लाउडेड एस्पेक्ट, उसका जो धुंधला एस्पेक्ट है, भाव है, विच had held possession of his face, जो कि उसके चेहरे को कब से घेरा हुआ था, चिड़ा हुआ इसी प्रॉब्लम से कि यार ठीक है गलती हो गई तो हो गई। एंड क्लाउडेड एस्पेक्ट की अभी उसको सोल्यूशन नहीं पता है, तो उसको नहीं पता है कि वो यहाँ पे खुश होना चाहिए कि नहीं। सिंस द सब्जेक्ट ऑफ हिज कॉर्न डीलिंग्स हैड बीन ब्रॉस्ड, कब से, जब से उसका कॉर्न डीलिंग के टॉपिक को उठाया गया है, उस मुद्दे को उठाया गया है, इट चेंज इनटू वन ऑफ अरेस्टेड अटेंशन इटसेल्फ, है ना। उसी की वजह से उसका जो उसकी जो गहरी रुचि है, मतलब ये जो टॉपिक है अब वो उसके इंटरेस्ट में बदल गया है जब से ये मुद्दा उठाया गया। और वो उस नोट में भी ऐसा ही कुछ लिखा था, उसके इंटरेस्ट रिलेटेड चीज। ही रेड द नोट स्लोली, उसने धीरे से वो नोट पढ़ा, ठीक है, एंड फेल इनटू द थॉट, अभी वो सोच में डूब गया। नॉट मूडी बट फिटफुली इंटेंस, सिर्फ मूडी नहीं बल्कि गहन सोच में, इंटेंस थॉट में वो चला गया। एज दैट ऑफ अ मैन हु हैज बीन कैप्चर्ड बाय एन आइडिया, इतना डीप थॉट में चला गया जैसे कि उस आदमी ने जिसने ये नोट लिखा उसने उसके माइंड को, उसके दिमाग को, उसके थॉट्स को कैप्चर कर लिया, ओके, पकड़ लिया। बाय दिस टाइम टोस्ट एंड स्पीचेस हैड गिवन प्लेस टू सॉन्ग्स। अभी इस टाइम तक जो क्या कहते हैं, इतनी देर के बाद, बाय दिस टाइम जो टोस्ट और भाषण थे, स्पीचेस थे, वो उनकी जगह पर क्या हो गया, अब सॉन्ग्स बजने लगे। ओके, द वीट सब्जेक्ट बीइंग क्वाइट फॉरगेट, और जो वीट वाला या कॉर्न डीलिंग वाला जो सब्जेक्ट था, वीट वाला, सॉरी बेसिकली आई शुड नॉट से कॉर्न, वीट वाला जो टॉपिक था कि खराब वीट तुमने खरीद ली, वो टॉपिक एक तरफ से गायब हो गया। जब खा पी रहे थे लोग तो डिस्कशन चल रहा था, अब जब गाने वाने बज रहे हैं तो बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं और वो टॉपिक ही गायब हो गया। Men were putting their heads together in twos and threes, telling good stories with pantomimic laughter, which raised convulsive grimace. आदमी दो दो और तीन तीन के ग्रुप में, man in the group of two or three, sorry, man in the group of two or three, putting their heads together, यानी कि एक साथ अपने ग्रुप में एक दूसरे से बात करते हो, हेड्स टुगेदर मतलब झुंड बना के बैठ गए और वो अच्छी अच्छी कहानियां सुना रहे थे, टेलिंग गुड स्टोरीज विद पैंटोमिमिक लाफ्टर। पैंटोमिमिक लाफ्टर मतलब बहुत ज्यादा ड्रामेटिक लाफ्टर, जो है ना कि छोटी सी बात पे तेज तेज हंसता, वैसा। विच रेज कन्वर्सिव ग्रीमेंस, जो कि एक अलग ही ग्रीमेंस मतलब मुस्कान,
एक अलग ही खुशी से भर जाती है जब ऐसा डिस्कशन चलता है जिसमें वो छोटी सी बात पे भी बहुत तेज तेज हंसते हो, काइंड ऑफ pantomimic laughter, dramatic laughter. Hanchard looked at it. Uh, sorry, एक minute. And then what happens? Some were beginning to look as if they did not know how they had come there, what they had come for, or how they were going to get home again, and provisionally sat on with a dazed smile. अभी बहुत लोगों ने ड्रिंक की हुई, तो कुछ लोगों को ऐसे दिखने लगा था जैसे उन्हें पता ही नहीं था कि वो यहाँ कैसे हैं. सम वर, ठीक है, उनको दे बिगनिंग टू लुक, वो ऐसा देखने लगे, सोचने लगे जैसे कि उनको पता ही नहीं है कि वो यहाँ पर कैसे आए, और वॉट दे हैव कम फॉर, क्यों आए, है ना, किस किस पर्पज से यहाँ आए, और हाउ दे वर गोइंग टू गेट होम अगेन, और कैसे वो वापस घर जाएंगे क्योंकि उन्होंने इतनी ड्रिंक कर ली. एंड प्रोविजनली सेट ऑन विद अ डेज स्माइल, और इस तरह से वो चुपचाप डेज स्माइल के साथ, यानी कि एकदम से क्लोज स्माइल के साथ वो वहां पर बैठ. स्क्वायर बिल्ट मैन showed a tendency to become hunchbacks. Men with a dignified presence lost it in a curious obliquity of figure, in which their features grew disarranged and one sided, whilst the heads of a few who had dined with extreme thoroughness were somehow sinking into their shoulders, the corners of their mouth and eyes being bent upwards by the substance. A square built man, अच्छी वाली, जो कद काठी वाला आदमी था, वो जो लोग हैं, देवर, उन लोगों में एक टेंडेंसी दिखी, कैसी, हंच बैक सी की, यानी कि ऐसे झुक झुक के, खूब निकाल निकाल के बैठ गए, यानी कि झुक झुक के, क्योंकि उन्हें ड्रिंक ड्रिंक की हुई थी. मैन विद ए डिग्निफाइड प्रेजेंस लॉस्ट इट इन अ क्यूरियस ऑब्लिविटी ऑफ इट. वो लोग जिनकी एक डिग्निफाइड प्रेजेंस थी, गरिमामयी प्रेजेंस थी, वो अब अजीब से टेढ़ेपन में खो गए थे, मतलब वो अजीब तरह से बैठे हुए थे. In which their feature grew disarranged and one-sided, और जिसमें उनके चेहरे की क्या दिखाई देती है, अम ये वन साइडेड विशेषता दिखाई देती है कि उन्होंने जब ये सब पिया तो नाउ दे आर नॉट इनटू देयर कॉन्शियस, ठीक है. जबकि वाइल्स द हेड्स ऑफ अ फ्यू, जबकि उनमें से कुछ लोग जिन्होंने who had dined with extreme thoroughness were somehow sinking into their shoulders, और जिसने कह सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने बहुत ज्यादा मन से, है ना, एक्सट्रीम थॉरोनेस, बहुत ज्यादा मन से खाना खाया, ठीक है, वर सिंकिंग इनटू देयर शोल्डर्स, वो अपने कंधों में झुक रहे थे, यानी कि वो लोग भी डिजी फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा खा लिया और थक गए थे, सोने वाले थे. एंड द कॉर्नर्स ऑफ देयर माउथ एंड आईज बीइंग बेंट अपवर्ड्स बाय द सब्सिडेंट, और उनके मुंह और आंख के किनारे जो हैं वो धस रहे थे, मुड़ रहे थे, यानी वो होता है ना जब कोई सब कॉन्शियस होता है, ऐसे डोजी या स्लीपी ऐसे कुछ होता है, उस वे में वो दिख रहे थे, पिए हुए लग रहे थे. द क्लॉक स्ट्रक 9, घड़ी में कितने बज गए अब, 9 बज गए, ठीक है. सॉरी, ये लाइन रह गई. ओनली हैंचर डिड नॉट कंफर्म टू दीज फ्लेक्सिस चेंजेस, केवल हैंचर था जो उसके अंदर ये सब चीजें नहीं बदली क्योंकि उसने ड्रिंक नहीं की, बाकी सब लोग अजीब से बिहेव कर रहे. ही रिमेन स्टेटली एंड वर्टिकल साइलेंटली थिंकिंग, वो एकदम शालीन, सीधा, चुपचाप सोचता हुआ बैठा था या खड़ा था, ठीक है. द क्लॉक स्ट्रक 9, घड़ी में रात के 9 बज गए. एलिजाबेथ जेन टर्न टू हर कंपेनियन, एलिजाबेथ जेन अपनी मदर के पास जाती है. द इवनिंग इज ड्रॉइंग ऑन मदर, शी सेड, व्हाट डू यू प्रपोज टू डू. देखो रात हो रही है मम्मा, अब बताओ क्या करना है. ओके. तो यहाँ पे देखा कि ये जो पार्टी है ऑलमोस्ट ओवर हो गई है, लोग ड्रिंक किए हुए हैं और उनको नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं. नेक्स्ट, शी वॉज सरप्राइज टू फाइंड, वो एकदम से सरप्राइज हो गई ये जानकर, हाउ इरेजोल्यूट हर मदर हैड बिकम, कि उसकी माँ कितनी इरेजोल्यूट हो गई, यानी कि कितनी कह सकते हैं अनस्टेबल हो गई, यानी कि वो बहुत ज्यादा थकी हुई और परेशान सी है. We must get a place to lie down in, she murmured. वो धीरे से आवाज में बोलती है, हमें
थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए कोई घर ढूंढ लेना चाहिए या कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए। आई हैव सीन मिस्टर हैंचर्ड एंड दैट्स ऑल आई वांटेड टू डू। वो कहती है कि मैंने हैंचर्ड को देख लिया, बस मुझे इतना ही चाहिए था। अब हमें रहने के लिए, सोने के लिए कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए। दैट्स इनफ फॉर टुनाइट एट एनी रेट। आज के लिए इतना काफी है। एलिजाबेथ जेन रिप्लाई। एलिजाबेथ जेन कहती है कि कम से कम आज रात के लिए तो ये काफी है, कि जितना तुमने देख लिया उसी की बात को है एडेड ऑन करते हुए कहती कि हाँ ठीक है, आज रात के लिए हमने जितना देख लिया उतना काफी, जितना मिल लिया। वी कैन थिंक टुमारो व्हाट इज बेस्ट टू डू अबाउट इट। अब हम कल सोचेंगे कि कल हम और क्या कर सकते हैं। द क्वेश्चन नाउ इज, और इज इट नॉट। ठीक है, क्वेश्चन ये है और है ना, हाउ शैल वी फाइंड अ लॉजिंग, कि हम ठहरने की जगह, रुकने की जगह कहाँ से ढूंढे, कैसे ढूंढे। As her mother did not reply, Elizabeth Jane's mind reverted to the words of the waiter. जब उसकी मदर ने रिप्लाई नहीं दिया तो एलिजाबेथ जैन को उस वेटर की बात याद आई जो कि उसने उस स्कॉचमैन को बताई थी। क्या? दैट द थ्री मरीनर्स वाज एन इन ऑफ मॉडरेट चार्जेस, कि थ्री मरीनर जो है वो एक मॉडरेट चार्ज का, एक सस्ता होटल। अ रिकमेंडेशन गुड फॉर वन पर्सन वाज प्रोबेबली गुड फॉर अनदर। एक किसी पर्सन के लिए यदि कोई बात सही है ना, रिकमेंडेशन यदि उसको बताया गया जो सही है, तो दूसरे के लिए भी सही हो सकती है। लेट्स गो वेयर द यंग मैन हैज गॉन टू सीसाइड। चलो तो उधर चलते हैं जहां वो यंग मैन गया है। ओके, ही इज रिस्पेक्टेबल। व्हाट डू यू से? वो एक रिस्पेक्टेबल आदमी है, आप क्या कहते हो? Her mother assented and down the street by the street they went. उसकी माँ हामी भरती कि ठीक है चलो वहां चल लेते हैं, क्योंकि she is not into her conscious वो deep thought में खोई हुई है। फिर कहती कोई बात नहीं, उधर चल लेते हैं। In the meantime, the mayor's thoughtfulness uh, engendered, engendered by the note as stated, continued to hold him in abstraction till, whispering to his neighbor to take his place, he found opportunity to leave the chair. इसी बीच, in the meantime, द मेयर्स थॉटफुलनेस, मेयर का जो थॉटफुलनेस है, मेयर की जो विचारशीलता है, बिकॉज उसने ड्रिंक नहीं की तो ही इज इनकॉन्सियस, वो गहरे विचारों में डूबे रखा, है ना, जो कि उस नोट के कारण हुई थी, है ना। कॉन्टिन्यू टू होल्ड हिम इन एब्स्ट्रक्शन, उस नोट की जो बात थी उसको वो सोचे जा रहा था, सोचे जा रहा। टिल विस्परिंग टू हिज नेबर टू टेक हिज प्लेस, कब तक? जब तक उसने अपने पड़ोसी से धीरे से उसका स्थान लेने के लिए नहीं कहा। और ही फाउंड अपॉर्चुनिटी टू लीव द चेयर, जब उसने अपनी चेयर छोड़ी, जब उसके उसने वो तब तक उस ख्यालों में खोया रहा जब तक उसके नेबर ने, जो भी पास में बैठा था, उसने नहीं कहा कि मैं यहाँ पे बैठ जाऊं। तब वो उस जगह से उठा। दिस वॉज जस्ट आफ्टर द डिपार्चर ऑफ हिज वाइफ एंड एलिजाबेथ। ये जस्ट उसके बाद की बात थी जब एलिजाबेथ जैन एंड उनकी वाइफ, सॉरी मदर, चली गई थी, यानी उसकी बेटी और वाइफ दोनों चले गए थे। Outside the door of the assembly room, he saw the waiter. Assembly room के बाहर उसने एक waiter को देखा, and beckoning to him asked who had brought the note which had been handed in a quarter of an hour before. उससे पूछता है वेटर के पास कि बताओ, तुम इशारों में बुलाकर पूछे कि वो नोट कौन लाया था जो तुम मुझे क्वार्टर एंड ऑफ एन आवर बिफोर, 15 मिनट पहले तुमने मुझे जो नोट दिया था, क्वार्टर ऑफ एन आवर बिफोर, वो तुम्हें किसने दिया? अ यंग मैन कहता है, अ यंग मैन सर, अ सॉर्ट ऑफ ट्रेवलर, एक यंग आदमी था, मुझे कोई ट्रेवलर लगता था। ही वॉज अ स्कॉचमैन सिमिंगली, देखने में वो स्कॉटलैंड का लगता था। डिड ही से हाउ ही हैड गॉट इट? क्या उसने बोला कि उसको ये कैसे मिला? ही wrote it himself sir as he stood outside the window। तो भाई कि भाई अच्छा, मुझे तो एक स्कॉटलैंड का पर्सन था, शायद उसने दिया, वो कोई ट्रैवलर था। तो कि तुमने पूछा कि उसको ये किसने दिया? तो वो कहता है कि ये तो उसने खुद ने ही लिखा है, एज ही स्टूड आउटसाइड द विंडो, वो विंडो के बाहर खड़ा था, उसने खुद ही लिखा और मुझे दिया। ओ, रॉट इट हिमसेल्फ, खुद ने लिखा है। इज द यंग मैन इन द होटल, क्या वो इस होटल में है? नो सर, ही वेंट टू द थ्री मैरिनर्स आई बिलीव।
नहीं सर, वो इस होटल में नहीं है, बट वो शायद थ्री मैरिनर्स में चला गया है। उसको कैसे पता? क्योंकि उसने वो खुद ही उसको बताया था कि तुम थ्री मैरिनर्स चले जाओ, वो एक सस्ती होटल है। तो वो हिंट देता है पूछने पे कि हाँ, वो शायद थ्री मैरिनर्स चला गया। अब इसके आगे का जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ हमें जो पता चलता है वो ओवरऑल, यदि मैं इसको समराइज करूँ, कि हैंचर्ड जो है उसने वो लेटर खोला, ठीक है, बहुत ही आराम से। और जैसे ही पढ़ा, पहले वो उतना ज्यादा अलर्ट नहीं था, लेकिन जैसे उसने पढ़ा वो एक अलग सी ही परेशानी में चला गया। ठीक है। और जिस चीज की वजह से वो परेशान था उसके बारे में डीप थॉट करने लगा, सोचने लगा, क्योंकि उसमें उस लेटर में ऐसा कुछ लिखा था जिसकी वजह से वो उन विचारों में डूबा रहा। ठीक है। और वहां के जो लोग थे वो सब क्या थे? खा पी के टल्ली। जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे यहाँ क्यों आए हैं। ठीक है। उन्होंने खाना खाया, किसी के झुके हुए कंधे लग रहे थे, कोई बैठा ही नहीं पा रहा था। एलिजाबेथ जैन ने देखा कि उसकी माँ बहुत ही कंफ्यूज लग रही थी उसको, कि ये क्या सोच रही है। आई थी यहाँ पे हैंचर को ढूंढने और अब कह रही कि नहीं, मैं तो मिल ली, मुझे नहीं मिलना। तो वो सोचती कि चलो ये सब तो छोड़ो, 9 बज गया ऑलरेडी रात के, अब अपन को कहीं रहने की जगह ढूंढ लेती है, ऐसा वो कहती है उसकी मदर। तो वो कहती है कि एलिजाबेथ जैन कहती है कि तो फिर एक काम करते, जहाँ पे वो अभी यंग मैन गया है ना, थ्री मैरिनर्स इन, वहां चलते हैं, क्योंकि वो एक सस्ती होटल है। ठीक है। और वो आदमी, वो वहां जाने के लिए क्यों अग्री हुए? क्योंकि वो जो आदमी आया था उसने एक नोट दिया, वो नोट मेयर तक पहुंच गया, इसका मतलब वो एक रिस्पेक्टेबल आदमी है, ऐसे वैसे नहीं। ठीक है। तो हैंचर्ड जो है वो उस लेटर को देख के इतना ज्यादा खो गया कि वो पड़ोसी से, उसके नेबर से कहता है कि तुम मेरी जगह पे आ जाओ, और ऐसा करके वो उठ के चला जाता है। उसने वेटर से जाके पूछा कि तुम्हें ये लेटर किसने दिया? तो वेटर बताता है कि मुझे एक स्कॉटिश ट्रेवलर ने दिया था। और वो पूछा कि वो कहाँ गया होगा, तो वो कहता है कि वो थ्री मैरिन में चला। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे काफी चेंजेस आपको लगेंगे हैंचर्ड के बिहेवियर में। और अभी ये लोग जाएंगे, एलिजाबेथ जैन और सुजैन, उस थ्री मैरिनर इन में, जहाँ पे वो स्कॉटलैंड वाले आदमी से भी मिलेंगे। और हो सकता है कि हैंचर्ड भी वहां पे उस आदमी से मिलने चला जाए, और इस तरह से ये लोग आपस में मिल सकते हैं। सो that's all for today. Thank you so much for watching this video. See you in the next, the remaining part of chapter 6 will be covering in the next. Goodbye.